अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। भारत की साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी की आज 105वीं यौम पैदाइश। तेलंगाना कांग्रेस के सदर दफ्तर गांधी भवन में मुनक्किद की गई तकरीब। कायदीन ने इंदिरा गांधी की तस्वीर पर पेश किया गुलाए अकीदत। हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बॉयज हॉस्टल की इमारत का संगे बुनियाद। तेलंगाना के वुज़रा सविता इंदिरा रेड्डी, तलसानी श्रीनिवास यादव ने की शिरकत। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी का मरकजी वजीर किशन रेड्डी की सदारत में इजलास। मुद्रा कर्जों, PM सेवा निधि कर्जों, PM आवास योजना वगैरह का लिया जायजा। कहा अंदरून एक हफ्ता बैंकर्स का इजलास किया जाएगा मुनक्किद। SIT ने बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी BL संतोष को किया तलब। SIT की नोटिस पर हाई कोर्ट में BL संतोष ने दायर किया पिटीशन। हैदराबाद की हुसैन सागर झील के किनारे इंडियन रेसिंग लीग के लिए ट्रैक तैयार। वजीर KTR ने इफ्तिताई एडिशन का आज हफ्ते को झंडी दिखाकर किया आगाज। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ने पार्टी के सीनियर लीडर मर्री शशिधर रेड्डी को किया 6 साल के लिए पार्टी से बरतरफ। बीजेपी कायदीन के साथ वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात पर की गई कार्रवाई। कांग्रेस की तादीबी कमेटी के चेयरमैन चिन्ना रेड्डी ने इस सिलसिले में जारी किए अहकामात। और अब खबरों की तफसील। भारत की साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की आज 105वीं यौम पैदाइश मनाते हुए मुल्क ने उन्हें याद किया। इस ज़िमन में आज तेलंगाना कांग्रेस के सदर दफ्तर गांधी भवन में एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें TPCC सदर रेवंत रेड्डी, कांग्रेस कायदीन भट्टी विक्रमार्का, मोहम्मद अली शब्बीर, अंजन कुमार यादव, श्रीधर बाबू और दीगर ने इंदिरा गांधी की तस्वीर पर गुलाए अकीदत पेश करते हुए उनकी खिदमात को याद किया। शहर हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तेलंगाना के वुज़रा सविता इंदिरा रेड्डी और तलसानी श्रीनिवास यादव ने 50 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से तामीर होने वाली बॉयज़ हॉस्टल की इमारत का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर रुकन असेंबली सुभाष रेड्डी, MLC सुरभि वानी देवी, यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर प्रोफेसर रविंद्र के अलावा प्रोफेसरों और तुलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి ఉన్న చరిత్ర మనం ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రపంచంలో యువత మీద ప్రత్యేకమైన ముద్ర వేసిన యూనివర్సిటీ ఏదంటే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ. అలాంటి యూనివర్సిటీలో ఈరోజు మేము రావడం, ఈరోజు ఫౌండేషన్ వేయడం, ఒక మంచి హాస్టల్కి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశంతో యూనివర్సిటీలో మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు పెద్దపీట వేయాలనే ఉద్దేశంతో కేసీఆర్ గారి ఆధ్వర్యంలో వారి ఆదేశంతో ఈరోజు ఒక మంచి కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టడం. ఇదే కాదు, గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన విద్యార్థులకు హాస్టల్ వసతి కల్పించడానికి పెద్దపీట వేయాలనేది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశం. దాంట్లో భాగంగానే ఈ మధ్యనే మనం నిజాం కాలేజ్లో ఒక 5 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి అమ్మాయిల కోసం ఒక బిల్డింగ్ కట్టుకోవడం, ఇంకొక 18 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి అబ్బాయిల కోసం ఒక హాస్టల్ బిల్డింగ్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం, అదే ఉస్మానియాలో ఈరోజు 39 కోట్ల 50 లక్షలతో ఈరోజు ఒక మంచి హాస్టల్ బిల్డింగ్కి ఫౌండేషన్ వేసుకోవడం జరిగింది. చాలా తొందరలో 12 మంత్స్ టార్గెట్ పెట్టుకున్నా వీళ్ళంత తొందరలో దాన్ని పూర్తి చేయాలని గౌరవ చైర్మన్ గారికి శ్రీధర్ గారిని కోరడం జరుగుతుంది. వీళ్ళంత తొందరలో దాన్ని పూర్తి చేసి స్టూడెంట్స్కి అందించడం జరుగుతుంది. దాదాపు 600 పైచిలకు స్టూడెంట్స్కి ఈరోజు ఏర్పాటు చేయడం, దాదాపు 160 రూమ్స్ ఏర్పాటు చేయడం, G+3 లో కట్టడం అనేది సంతోషం. తొందరలో పూర్తి చేసి అందించడం జరుగుతుంది. విద్యార్థులు మరియు స్కాలర్స్ అందరికీ ఈరోజు ఒక శుభదినం. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు మంత్రి గారితో మేము చాలా రోజుల నుంచి సంప్రదించి ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ మనకు చాలా అవసరం ఉన్నదని చెప్పి ప్రధానంగా ఈ హాస్టల్ని ఏర్పాటు చేయడం అనేటువంటిది ఏదైతుందో అది నిజంగా ఒక శుభదినం, చారిత్రాత్మకమైనటువంటి దినం. ఈ నేపథ్యంలో మనం ప్రభుత్వాన్ని, ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరినప్పుడు మంత్రి గారితో చాలా సందర్భాల్లో సమావేశం ఏర్పాటు చేసి మన ఏమేమి నీడ్స్ ఉన్నాయనేటువంటి వాటిని మేము ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. దాదాపు చాలామంది ప్రాసెస్ తోటి ఏర్పాటు చేసినటువంటి 2021లో 21 పాయింట్ ఎజెండాను, అంటే వచ్చేటువంటి 10 సంవత్సరాలకు మనం ఏం చేయాలనేటువంటి ఎజెండాను రూపొందించుకోవడం జరిగింది. ఆ ఎజెండాలో భాగంగా ముఖ్యంగా టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెథడ్స్ను ఒకటి, రెండవది
రీసెర్చ్ అనేటువంటిది ప్రధానమైనటువంటి అంశం. రీసెర్చ్ పైన అత్యధికమైనటువంటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని రెండవ అంశం. మూడవది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరు, నాలుగవది అవుట్ రీచ్ యాక్టివిటీస్ అని ఈ 4 అంశాలపైన ఒక 10 years కావాల్సినటువంటి రోడ్ మ్యాప్ను ఏర్పాటు చేసుకొని మేము ముందుకు వెళ్తున్నాము. मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने आज सुबह हैदराबाद में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी के इजलास की सदारत की। इस मौके पर मरकजी वजीर ने जिले में मुद्रा कर्जों, छोटे ताजिरों में पीएम सेवा निधि कर्जों की तकसीम, पीएम आवास योजना के तहत मकानात की तामीर वगैरह का जायजा लिया। उन्होंने कर्जों की फरहमी में ताखीर के बारे में दरियाफ्त किया। इस इजलास में जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार, मुतालिका महकमों के अहदेदार और मुकामी अवामी नुमाइंदों ने भी शिरकत की। इस मौके पर मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर बैंकर्स का इजलास मुनक्किद किया जाएगा। बैंकरों की मीटिंग में मुद्रा कर्जों की तकसीम पर एक्शन प्लान को हतमी शक्ल दी जाएगी। तेलंगाना पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने टीआरएस एमएलएस के खरीदो फरोख्त मामले की तहकीकात को मजीद तेज कर दिया है और एक अहम पेशरफ्त में एसआईटी ने बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष को तलब किया है। एसआईटी ने ज़ाब्ता फौजदारी की दिफा 41A के तहत बीजेपी लीडर को नोटिस जारी करते हुए 21 नवंबर को उसके सामने हाजिर होने को कहा है। संतोष को सुबह 10:30 बजे हैदराबाद के पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई है। एसआईटी ने नोटिस में कहा है कि अगर वो पेश नहीं होते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वाज़ेह हो गए संतोष का नाम गुज़िश्ता माह पुलिस के ज़रिए गिरफ्तार किए गए बीजेपी के 3 मुबैना एजेंटों के दरमियान हुई बातचीत में सामने आया था, जो टीआरएस के 4 एमएलएस को भारी रकम का लालच देकर बीजेपी में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने टीआरएस अरकान असेंबली के मुबैना खरीदो फरोख्त मामले में बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष को एसआईटी की तरफ से जारी नोटिस पर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किया है। एडवोकेट जनार्दन गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए इस संबंध में तफसीलात बताई। वो फार्म हाउस एमएलए पोचिंग केस में आज बीएल संतोष हु इज नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑफ भारतीय जनता पार्टी, इनके 41 नोटिस सर्व करने के लिए दिल्ली गए तो दिल्ली पुलिस वाला कोऑपरेट नहीं कर रहा है बोल के एक पिटीशन डाले और भारतीय जनता पार्टी भी एक पिटीशन डाले। उसमें हमारा पार्टी जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष जी है, इनको बीजेपी पार्टी को बदनाम करने के लिए ये सीट इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसीलिए वो 41 नोटिस को क्वाश करने के लिए पिटीशन डाले। उसमें दोनों पिटीशन सुनने के बाद कोर्ट ने वो आर्डर दिए, वो बहुत बीएल संतोष जी सीट के सामने इन्वेस्टिगेशन को हाज़र होना है। पुलिस वालों को भी एक डायरेक्शन दिए, सीट संतोष जी को इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उनको अरेस्ट नहीं करना बोल के भी एक आर्डर दिया है। उनको अरेस्ट करना ज़रूरत है तो कोर्ट को अप्रोच होना, हाई कोर्ट को पूछना, हाई कोर्ट में पिटीशन डालना, बाद में हाई कोर्ट कंसिडर करके वो पिटीशन में ऑर्डर पास करते हैं। उस वक्त तक वो संतोष जी को अरेस्ट नहीं करना बोल के एक आर्डर दिया। आपको क्या लगता है दिल्ली पुलिस क्यों रिस्पॉन्स नहीं दे रही है? दिल्ली पुलिस तो उधर लोकल बॉडी इलेक्शन December 4 को है, इसीलिए वो दिल्ली पुलिस हम बिजी है बोल के कोऑपरेट नहीं कर रहे। वो दिल्ली पुलिस वालों को भी आज कोर्ट डायरेक्शन दिए, ये 41 नोटिसेस है, एक 1 आवर का मामला है। पुलिस हैज़ टू कोऑपरेट विद द सिट पुलिस ऑफ तेलंगाना। वो सिट पुलिस आए तो दिल्ली पुलिस उसके साथ बीएल संतोष जी के पास जाना है, नोटिस सर्व करना है बोल के दिल्ली पुलिस वालों को भी आदेश दिया। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श KT रामाराव ने आज हफ्ते को शहर हैदराबाद की हुसैन सागर झील के किनारे इंडियन रेसिंग लीग के इफ्तिताई एडिशन को झंडी दिखाकर रवाना किया। वाज़ेह हो कि फार्मूला ई रेस के पेश खेमे के तौर पर HMDA इंडियन रेसिंग लीग के साथ मिलकर फरवरी में मुनक़िद होने वाले बड़े इवेंट के लिए अपनी तैयारी को जांचने के लिए ट्रैक पर एक तरह के ट्रायल रन के तौर पर 2 रेसों का इनेकाद कर रहा है। इस हफ्ते के आखिर में हो रही ये ट्रायल रेस मुस्तकबिल की रेसों के लिए ट्रैक की तैयारी में मददगार साबित होंगी। गौरतलब है कि इंडियन रेसिंग लीग जो 5 शहरों की दौड़ है, दुनिया में अपनी नौयत की पहली है और पहली बार हैदराबाद में मुनक़िद हो रही है। सदरमत प्रोजेक्ट का काम अप्रैल तक मुकम्मल हो जाएगा, ये बात तेलंगाना के वजीर जंगलात इंदिरा करण रेड्डी ने कही है। उन्होंने आज डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में ज़िला कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी के हमरा महकमा आबपाशी के इंजीनियरों के साथ मुनक़िदा इजलास में कही। इस इजलास में एडिशनल कलेक्टर्स हेमंत रामबाबू, चीफ इंजीनियरिंग
ऑफिसर श्रीनिवास, आपाशी अफसरान, तहसीलदार, अवामी नुमाइंदों ने प्रोजेक्ट सैलाब से होने वाले नुकसानात चेक डैमों का जायजा लिया। इस मौके पर वजीर इंदिराकरण रेड्डी ने कहा कि सदरमत प्रोजेक्ट अप्रैल तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। बाकी मानदा इजाज़तनामे और गेट जल्द अज जल्द बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सदरमत प्रोजेक्ट से ज़िला निर्मल के 50,000 एकड़ अराजी को काश्तकारी के लिए पानी फराहम किया जा सकेगा। అందరి సమక్షంలో సదర్మాట్ ప్రాజెక్టు మనకు ఏప్రిల్ వరకు పూర్తిగా కంప్లీట్ అవుతుంది. చిన్న 2-3 శాంక్షన్స్ కానీ 2-3 పర్మిషన్స్ మిగిలిపోయాయని చెప్తున్నారు కాబట్టి అవి తొందరగానే ఏర్పాటు చేసి ఏప్రిల్లోగా గేట్లు ఫిక్స్ చేసి పైన మోటరేబుల్ కూడా వెహికల్స్ పోవడానికి కూడా వీలైనటువంటి బ్రిడ్జ్ తయారు కావాలని చెప్పి మేము చెప్పడం జరిగింది. ఏదైనా మధ్యాహ్నం అడల్ట్స్ ఏదైనా ఉంటే మాకు చెప్తే అది కన్సర్న్ ఆఫీసర్స్ పైన సెక్రటరీస్తో మాట్లాడి దాన్ని కంప్లీట్ చేపిస్తాం. 27 ప్యాకేజ్ కూడా ఇంకా ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్కి సంబంధించినటువంటి ఒక 35 కోట్ల రూపాయలు మనకు రిలీజ్ అయినట్టయితే ఎవరికైతే భూమి నష్టపరిహారం ఉందో ఆ నష్టపరిహారం అందిస్తే ఆ పన్ను కూడా చేయొచ్చు. 27 ప్యాకేజ్ కూడా 80% వరకు ఈ వచ్చే జూన్ వరకు కంప్లీట్ అయితే కనీసం స్వర్ణ ప్రాజెక్టుకు నీళ్ళు ఇచ్చేది కానీ లేదా 100 టన్నులది కంప్లీట్ అయితే స్వర్ణ ప్రాజెక్టు నీళ్ళు పోతాయి, ధోనియా ప్రాజెక్టు పోతుంది. మామిడ పోవడానికి కూడా మామిడకు నీళ్ళు పోవడానికి మధ్యాహ్న ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ ప్రాబ్లం కూడా ఉంది. అది కూడా పూర్తి అయితే మామిడ చెర్ల వల్ల నీళ్ళు పోతే కింద ఎన్నో చెర్లు మనకు నీళ్ళు పోయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఆ మెయిన్ కిరాలకు సంబంధించినటువంటి ఈ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ డబ్బులు రిలీజ్ అయితే మా ప్రాబ్లం అంతా కూడా సాల్వ్ అయిపోతుంది. ఈ సాదర్మాట్ వల్ల నిర్మల్ నియోజకవర్గానికి 50,000 ఎకరాల ఆయకట్టు అదనంగా వస్తుంది. మరి అవన్నీ పూర్తి కావాలని చెప్పి మేము ఈ రివ్యూ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. 28 ప్యాకేజ్ కూడా ఆ కాంట్రాక్టరు మధ్యాహ్నం వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు, అతనితో కాలేదు. దాని కొరకు మళ్ళీ ప్రభుత్వంకు దాన్ని రివైజ్ చేసి ఏజెన్సీ మార్చడానికి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఫైనాన్స్లో పెండింగ్ ఉంది, అది కూడా క్లియర్ అయితే ఫైనాన్స్ నుంచి ఒక 1 మంత్ లోపల టెండర్ పెట్టి కొత్త ఏజెన్సీకి ఇచ్చినట్టయితే అది కూడా జూన్ జూలై వరకు ఒక షేప్ వస్తుందని చెప్పి మేము కూడా అనుకుంటున్నాం. तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ने पार्टी के सीनियर लीडर एम शशिधर रेड्डी को 6 साल के लिए पार्टी से बरतरफ कर दिया है, जिन्होंने जुमे के रोज दिल्ली में बीजेपी कायदीन के हमरा वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करते हुए बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया था। पार्टी डिसिप्लिन शिकनी के इल्जाम में शशिधर रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तेलंगाना कांग्रेस की तादीबी कमेटी के चेयरमैन व साबिक वजीर जी चिन्ना रेड्डी ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के ज़िले कुमरम भी मासिफाबाद के कागज़ नगर टाउन में एक मरतबा फिर शेर के नज़र आने से मुकामी अफराद में खौफ का माहौल देखा जा रहा है। ये शेर एक तालाब के करीब नज़र आया। इत्तलात के मुताबिक एक किसान ने उसको देखा। उस किसान ने महकमे जंगलात के अहदेदारों को चौकस किया, जिसके बाद महकमे जंगलात के अहदेदार वहाँ पहुँचे और उस शेर के पंजों के निशानात की जाँच की और उसकी तलाशी का काम शुरू कर दिया। जंगलात के अहदेदारों ने इलाके की आवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया। तेलंगाना के कागज़ नगर टाउन में हालिया दिनों के दौरान शेर के नज़र आने के वाक़यात पर वज़ीर जंगलात इंदिराकरण रेड्डी ने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। उन्होंने निशानदेही की कि हालिया दिनों के दौरान पड़ोसी रियासत से तेलंगाना के जंगलाती इलाकों में शेरों की आमद में इजाफा हुआ है। उन्होंने एक तेलुगु टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि महकमा जंगलात इस खुसूस में इक़दाम कर रहा है ताकि आवाम को परेशानी का सामना ना करना पड़े। उन्होंने आवाम को चौकसी इख्तियार करने और जंगल में ना जाने का भी मशवरा दिया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी की आज यौम पैदाइश के मौके पर मानाकुंडूर हल्के के गन्नेरुवरम बस स्टैंड पर नस्ब करदा इंदिरा गांधी के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी गई। साबिक़ MP
पुन्नम प्रभाकर और जिला कांग्रेस कमेटी सदर डॉक्टर वी सत्यानारायणा ने इस इफ्तिताई तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी की खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश किया। ప్రణాళిక బోర్డు వైస్ చైర్మన్ తెచ్చుకున్నటువంటి వినోదరావు కోసం కావచ్చు, లేదా జిల్లా నుంచి ఉన్నటువంటి మంత్రి కొరకు కావచ్చు, మీరు ఇవాళ ఒకటే గన్నేరువరం నుంచి గుండ్లపల్లికి రోడ్డు ఎప్పుడు వేస్తారో రేపు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ లో చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి. మా మీద విమర్శ చేయడము రాజకీయంగా మమ్మల్ని తిట్టడం కాదు. మీరు బాధ్యత గల ఎమ్మెల్యేగా, బాధ్యత గల ప్రభుత్వంలో ఉన్న ప్రతినిధులుగా గన్నేరువరం నుండి గుండ్లపల్లికి రోడ్డు ఎప్పుడు వేస్తారో ఒక ఖచ్చితమైనటువంటి నిర్ణయం చేసి ప్రజలతో చప్పట్లు కొట్టించుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయమని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఒక ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం మండల కేంద్రంతో వెంటనే రావాలి, దాన్ని కూడా వెంటనే శాంక్షన్ చేయమని ఈ జిల్లాకు నేను పెద్ద మనిషిని సిద్దిపేటలో కలుపుకున్నారు, పక్కన పెద్దకి ఇలాంటివన్నీ ఆ హరీష్ రావు గారిని కోరుతాను ఇక్కడ ఇమ్మీడియట్గా ఒక ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం ఇవ్వమని. దాంతో పాటుగా మా అందరికంటే మీ అందరికంటే ఎక్కువ లాభం జరిగేది గంగుల కమలాకర్కి. మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఒక చొక్కరావుపల్లి నుంచి కరీంనగర్కు అదేంటి బ్రిడ్జ్ కడితే ఆయన ఫామ్ హౌస్ ముందరికే పోతుంది, కాబట్టి అయ్యా దాని కొరకు చొరవ చూపెట్టి ఈ బ్రిడ్జిని కూడా కార్యక్రమం చేపట్టమని సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నాం. తప్పకుండా ఇవాళ మీకు తెలుసు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా మనం కార్యక్రమాలు చేసుకున్నాం. అయినప్పటికీ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉమ్మడి రాష్ట్రం లోపల మన తెలంగాణకు అన్యాయం చేస్తున్నారని తెలంగాణ తెచ్చి కొట్లాడుకున్నాం. తెలంగాణ తెచ్చుకున్నాక న్యాయం జరగాలి కదా, మన పేరు మీదకే పైలబడ్డట్టు మన పరిస్థితి కావద్దు కదా. शहर मुस्तखर आदिलाबाद के मोहल्ले खानापुर वार्ड नंबर 29 में म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी ने बल्दिया के अमले के हमरा घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने टीआरएस हुकूमत की फलाही स्कीमों से मुस्तफ़ीज़ होने वालों की तफसीलात हासिल करते हुए मसाइल दरियाफ्त किए। इस मौके पर म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रुकन असेंबली जोगू रमना की हिदायत पर घर घर जाकर फलाही स्कीमों जैसे शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, आसरा वज़ाइफ, रायतू बंधु, ओल्ड एज पेंशन वगैरह के बारे में दरियाफ्त किया जा रहा है और दरपेश मसाइल को बगौर समाअत के बाद मसाइल के हल के यकीन दहानी की जा रही है ताकि रियासत के हर मुस्तहिक़ को सरकारी फलाही स्कीमात से जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि वो वार्ड के लोगों के लिए 24 घंटे दस्तयाब रहेंगे। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल बिल कलेक्टर राजन्ना प्रमोद, वार्ड जवान गंगाधर, जूनियर असिस्टेंट अब्दुल साजिद, हेल्थ असिस्टेंट शशांक, आंगनवाड़ी वर्कर रमा देवी और दीगर मौजूद थे। घर घर जाकर जो सो सर्वे किया जा रहा है, जिसको हमारे अर्दिल अजीज जोगू रमना साहब की हिदायत पर आज हम खानापुर से चालू करे हैं। जो वार्ड नंबर 29 के अंदर हर घर जाकर जो है सो गुज़िस्ता में केसीआर साहब ने जो बताया है कि जो स्कीम्स है वो हर घर को जो है सो जाकर बताएं और उन तक पहुंचाएं। उसी हिसाब से जो है सो जोगू रमना साहब ने ये हिदायत दी। इसीलिए आज हम हमारे म्यूनसिपाल्टी की टीम और हेल्थ वालों की सैनिटेशन बिल कलेक्टर्स को लेकर जो है हम हर घर जाकर जो है सर्वे कर रहे हैं कि सरकार की जितनी भी स्कीमें हैं वो स्कीमों को वो लोग तक पहुंच रही या नहीं पहुंच रही, अब तक किसको क्या मिला, और पेंशन खास करके पेंशन किससे आ रहा है और नहीं आ रहा है, वो तमाम चीज़ों को देखते हुए हम जितना हो सके उनके काम को हम तकमील करेंगे। क्योंकि हमारी जो टीम है जोगू रमना साहब की आदिलाबाद में जो टीम है बहुत ही ताकतवर टीम है और वो टीम बहुत अच्छे तरीके से आदिलाबाद में काम कर रही है। इसलिए आवाम से गुजारिश है कि आप लोग जो भी सरकारी स्कीम्स है वो स्कीम्स में अगर कहीं आपको नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप एमएलए साहब के और चेयरमैन साहब के पास जाकर जो सो आप अपनी दरख्वास्त दीजिए, आपका जो सो काम होगा। इसके अलावा भी शादी मुबारक के जो चेक्स आने के हैं, जो भी है वो मसले को जो सो आप मुझ तक पहुंचाइए। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द जो सो हम उसको करके जो सो आप तक पहुंचेंगे। आज जो वार्ड नंबर 29 में जो सर्वे किया जा रहा है उसमें तकरीबन हर घर को जो सो हम पहुंचकर जो से उनसे मालूमात हासिल कर रहे हैं और स्कीम्स के बारे में उनको बताया जा रहा है। और
जो पेंशन गुज़िस्ता में आशा पेंशन 57 साल के जो केसीआर साहब ने दिए हैं वो सबको पहुंचा या नहीं पहुंचा और कितने लोगों को पहुंचना है उसका भी हम सर्वे कर रहे हैं। और नालियाँ पानी वगैरह जो कुछ अगर नहीं आ रहा होगा या पानी का कुछ प्रॉब्लम है तो उसको भी हम देखते हुए आगे जा रहे हैं। इंशाअल्लाह जो काम कुछ भी अगर है तो हम उसको पूरा तकमील करेंगे और कुछ मसाइल अगर हमसे ज़्यादा है तो हम जोगर रमना साहब तक पहुंचा के वो मसले भी तो हम हल करेंगे बोल के मैं इतना कहते हुए। तेलंगाना के जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में एक सरकारी टीचर ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो गए। तफसीलात के मुताबिक सरकारी टीचर वेनू को रोजाना 2 से 3 हज़ार रुपये आमदनी हासिल होने से मुतालिक ऑनलाइन मैसेज मौसूल हुआ, जिस पर उन्होंने पार्ट टाइम काम करते हुए रोज़ाना 2 से 3 हज़ार रुपये कमाने के गर्ज से इस लिंक पर क्लिक कर दिया और एक ट्रैवल ग्रुप के लिए रेटिंग की, जिस पर उन्हें 2 बार 838 रुपये अकाउंट में हासिल हुए। यहाँ तक तो मामला ठीक रहा। इसके बाद मज़ीद रकम का लालच देकर सरकारी टीचर को रकम डालने को कहा गया ताकि वो रकम जमा करवाते हुए मज़ीद काम हासिल कर सकें, जिससे उनकी आमदनी बढ़ जाए, जिस पर सरकारी टीचर ने थोड़े थोड़े करके 4,76,772 रुपये जमा भी करवा दिए। फिर उन्हें मज़ीद 5 लाख रुपए जमा करवाने से मुतालिक मैसेज मौसूल हुआ। तब जाकर सरकारी टीचर को महसूस हुआ कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है। सरकारी टीचर वेनू ने इस बात की शिकायत बांसवाड़ा पुलिस से की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। सीआई महेंद्र रेड्डी ने आवाम को ऐसे ऑनलाइन घर बैठे रोज़ाना 2 से 3 हज़ार रुपये वाले मैसेजेस से होशियार रहने और पैसा खर्च करने या OTP देने से मुतालिक मैसेज पर यकीन ना करने का मशवरा दिया। దీని ప్రకారం అతను రేటింగ్స్ ఇవ్వాలని వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది। ట్రావెల్ ప్లేసెస్కు ఇండియాలో ఉన్న ట్రావెల్ ప్లేసెస్కు రేటింగ్స్ ఇవ్వమని కోరడం జరిగింది। 30 రేటింగ్స్ పూర్తి చేసినాక కమిషన్ రూపంలో డబ్బులు వస్తాయని చెప్పడం జరిగింది। తొలుత 30 రేటింగ్స్ ఒక సెట్ పూర్తి చేశాక అతని కమిషన్ రూపంలో 838 రూపాయలు అకౌంట్లో జమ చేయడం జరిగింది। దాని ద్వారా అతను దాన్ని కూడా నమ్మడం జరిగింది। ఆ తర్వాత కంపెనీ మొదటిసారి ఇట్లా జమ చేయమంటది, తర్వాత అవసరం లేదని వాళ్ళు చెప్పి ఇతన్ని నమ్మించడం జరిగింది। ఆ విధంగా ఇతను మళ్ళీ రెండవసారి కూడా కొంత అమౌంట్ జమ చేయడం జరిగింది। అమౌంట్ జమ చేసిన తర్వాత అతనికి మళ్ళీ కూడా కొంత కమిషన్ రావడం జరిగింది। 2 సార్ల కమిషన్ వచ్చిన పిదప మూడవసారి ఒక టాస్క్ ఇచ్చి ఆ టాస్క్లో 30 సెట్లు కంప్లీట్ చేయమని కోరడం జరిగింది। ఆ టాస్క్లో భాగంగా అతను 30 సెట్లో 28 సెట్లు కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది। 28 సెట్లో భాగంగా మధ్యలో సెట్లు కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీరు కొంత జమ చేస్తేనే మళ్ళీ మీకు కమిషన్ బాగా వస్తుందని వాళ్ళు ఆశ పట్టియడం జరిగింది। ఆ ఆశకు ఈ అత్యాశకు పోయి ఇతను దాదాపు 4,77,000 రూపాయల వరకు అమౌంట్ వాళ్ళ యొక్క ఖాతాలో జమ చేయడం జరిగింది। ఈ విధంగా ఖాతాలో జమ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ 28వ సెట్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా అతనికి మళ్ళీ కూడా 5 లక్షలు జమ చేయమని చెప్పడం జరిగింది। తర్వాత అతను జమ చేయలేక నేను సైబర్లో మోసపోయానని అర్థమై అతను పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి దరఖాస్తు ఇవ్వడం జరిగింది। కావున ఎటువంటి పార్ట్ టైం జాబ్ల పేరిట కానీ అదేవిధంగా OTP విషయం చెప్పడం కానీ తర్వాత ఇతర OLS దాని ద్వారా కానీ తర్వాత ఇతరత్ర మనకు తెలియని వ్యక్తి ఫోన్ చేసి మీకు డబ్బులు వస్తాయని చెప్పి అత్యాశ పూరితంగా ఏ ఒక్క మనిషి కూడా వివరించకుండా డబ్బులు ఎవరికి కూడా ఊరికి ఎవరు కూడా వారు కూడా ఇవ్వరు। కాబట్టి దయచేసి ఎవరైనా జాగ్రత్తగా ఉండి ఎటువంటి డబ్బులు పోగొట్టుకోవడం కానీ సైబర్ మోసగాళ్ళ చేతిలో మోసపోవడం కానీ చేయవద్దు। पुराना शहर हैदराबाद के इलाके बाबानगर चौराहे में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से होटलों और तिजारती इदारों के करीब ठहराई गई गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि गैर मजाज तौर पर गाड़ियों की पार्किंग फुटपाथ पर की जा रही है, जिसके नतीजे में ये कार्रवाई अंजाम दी गई। ताहम दूसरी तरफ आवाम का कहना है कि उनको गाड़ियों की पार्किंग के लिए बल्दिया की जानिब से कोई सहूलत फराहम नहीं की जा रही है। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस के रवैये को भी नामुनासिब करार दिया और कहा कि बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद भी बल्दिया की जानिब से पार्किंग के लिए कोई मुनासिब सहूलत फराहम नहीं की जा रही। निजामाबाद कमिश्नरेट हुदूद निजामाबाद आरमूर बोधन डिवीजन में रैपिड एक्शन फोर्स 99 बटालियन की कमान में फ्लैग मार्च किया गया। अवाम में अमन व सलामती का पैगाम देते हुए अवाम की हिफाजत के लिए पुलिस फोर्स हमेशा तैयार है। ये तासुर पहुँचाने के लिए एक हिस्से के तौर पर आज आरमूर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों, सियासतदानों, शहर की मोअज़्ज़िज़ शख्सियात और कॉलेज के तलबा के लिए एक बेदारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। आरमूर के
MR गार्डन में मुनक्किदा इस बेदारी प्रोग्राम में ACP प्रभाकर ने खिताब करते हुए अमन व सलामती के लिए महकमे पुलिस की जानिब से किए जा रहे इक़दामात पर रोशनी डाली। साथ ही इस काम में उन्होंने आवाम से ताउन की अपील की। कि आपका यहाँ पे जो भी है आप लोगों से मिलना, हमारा आड़त के बारे में किस प्रकार का हम ड्यूटी करता है और यहाँ के बारे में जो टोपोग्राफिक और डेमोग्राफिक जानकारी लेने के लिए as per records is this district is hyper sensitive। भले जो प्रीवियस रिकॉर्ड है उसके मुताबिक ये जो निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट है कम्युनिटी सेंसिटिव एरिया है, तो इसीलिए हम यहाँ पे हर एक साल आता है। हालांकि जो नॉर्मल सेंसिटिव एरिया है वहाँ पे हम 2 साल के अंतराल में एक बार जाता है। तो पिछले साल भी हमारा ही दूसरा प्लाटून आया थे, तो इस बार हम लोग आए हैं। मेनली हमारा आने का उद्देश्य यहाँ यही है कि हम लोग अगर इस प्रकार का अगर कोई सिचुएशन अगर रेस हुआ तो हम वहाँ से आने में कितना टाइम लगेगा या कौन सा यहाँ पे कम्युनिटी किस प्रकार का रहता है, अगर इस प्रकार का होगा तो हम गांव को किस प्रकार का गार्डन अप करेंगे, किस प्रकार का आपको एवोकेट करेंगे वगैरह वगैरह। और जो भी प्रीवियस हिस्ट्री है, इस प्रकार अगर कोई कम्युनल टेंशन रहा है उसको रिलीजियस प्रोमिनेंट आदमी है उनसे बातें करना किस प्रकार के हम इस प्रकार के कम्युनल टेंशन से बच सकते हैं, इसी के लिए आए हैं हम यहाँ पे। जमियत उलमा आरमूर मंडल की सिलाई सेंटर ट्रेनिंग का एक बैच मुकम्मल होने के मौके पर मुनक़िदा तकरीब में मुफ्ती मोहम्मद रफ़ीक ज़ाकिर ख़ासमी सदर जमियत उलमा आरमूर ने बताया कि 6 महीने पहले मुफ्त टेलरिंग सेंटर का आगाज़ अमल में आया था और आज एक बैच की ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई है। इस तकरीब में आरमूर असेंबली इंचार्ज राजेश्वर रेड्डी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की, जिनके हाथों सिलाई सेंटर में तरबियत हासिल करने वाली 20 ख़वातीन के सरपरस्तों को असनाद तकसीम किए गए। इस मौके पर सदर जमियत उलमा ने बताया कि जमियत हर मौके पर आवाम के दरमियान में रिफाई और फलाही काम अंजाम देती आ रही है। उन्होंने कहा कि आगे भी इस तरह के फलाही काम जारी रहेंगे। इस तकरीब में जमियत आरमूर के ज़िम्मेदारान, सियासी कायदीन व अवामी नुमाइंदों और दीगर ने शिरकत की। జమియతుల్ ఉలమా వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి ల్యాండ్లో ఈరోజు రూములు బిల్డ్ చేసి మరి అమ్మాయిలకు ఈరోజు టైలరింగ్ నేర్పించి వారికి సర్టిఫికేట్లు అందించి వాళ్ళని ఉన్నతులుగా తీర్చిదిద్దినటువంటి మరి స్థానిక మరి ప్రెసిడెంట్ అబ్దుల్ రఫీక్ సాహెబ్ గారికి, అదేవిధంగా మా మసీద్ ప్రెసిడెంట్ అబ్దుల్ రెహమాన్ సాహెబ్ గారికి, అదేవిధంగా మహిళనా కబీరుద్దీన్ సాహెబ్ గారికి, అదేవిధంగా అతీక్ ప్లాజా గారికి, ఉమర్ గారికి, అబ్దుల్ రెహమాన్ గారికి, కౌన్సిలర్ కాజీ హఫీజ్ గారికి, అదేవిధంగా నాతో పాటుగా విచ్చేసినటువంటి మరి మర్కజ్ కమిటీ ప్రెసిడెంట్ మన మొయిన్ భాయ్ గారికి, అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మరి చైర్మన్ పండిత్ పవనన్న గారికి, మన వైస్ చైర్మన్ మున్నుబాయ్ గారికి, కాంగ్రెస్ సీనన్న గారికి, అదేవిధంగా పండిత్ ప్రేమన్నకు, మరొక మైనార్టీ కౌన్సిలర్ మన ఫయాజ్ భాయ్ గారికి, మరి ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆర్గనైజ్ చేసి ఇక్కడ నన్ను విడిపించినటువంటి మా స్థానిక కౌన్సిలర్ ఇంతియాజ్ భాయ్ గారికి, అదేవిధంగా అతీక్ గారికి, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ముందట ఉన్నటువంటి మన అమీర్ గారికి, ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున వారందరికీ కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను। जमियत उलमा अरशद मदनी ग्रुप मंडल आरमूर दफ्तर पर आज हफ्ते के रोज़ एक तहनीती प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें हाफिज़ अब्दुल रहमान साकिन पिपरी के बिरादर हकीकी अब्दुल बारी, जिन्होंने ऑल इंडिया लेवल पर नीट के इम्तिहान में हिस्सा लेते हुए बहुत ही शानदार कामयाबी हासिल करते हुए मुल्क भर में ज़िला निज़ामाबाद व शहर आरमूर का नाम रोशन किया, को मुबारकबाद पेश करते हुए शालपोशी की गई। इस मौके पर जमियत उलमा की जानिब से अब्दुल बारी और उनके तमाम अहल खाना को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की गई और मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। इस मौके पर हाफिज़ इब्राहिम सदर जमियत उलमा मंडल आरमूर के अलावा मौलाना अकरमुद्दीन, हाफिज़ अब्दुल वहीद, हाफिज़ फ़ारूक और दीगर ज़िम्मेदारान मौजूद थे। आज जमियत उलमा ऑफिस पर एक तहनीती प्रोग्राम अमल में लाया गया है, जिसमें जनाब अब्दुल बारी साहब वल्द अब्दुल समद साहब पिपरी के हैं, जो ऑल इंडिया लेवल पर नेट का एग्ज़ाम दिए हैं। उसके अंदर इनका 319वां नंबर आया है। उसी बिना पर आज इन्हें तहनीत पेशी गई और मुबारकबाद भी पेश करते हैं। आज जो प्रोग्राम जमात उलमा के ताल्लुक़ से किया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। ये बच्चों की हिम्मत अफजाई की बात है। इससे बच्चों में और शऊर पैदा होता है और अच्छे से अच्छे नंबरों से कामयाबी के लिए कोशिशें होती हैं।
तो बारी भाई जो नंबर 319 जो रैंक लाए हैं ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए कि हम जहाँ तक हो सके लोगों से कंपेयर करते हुए अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करें। आप कभी भी कोशिश करते रहेंगे, अल्लाह फैसले करते रहेंगे। तुम्हारी कोशिशों पे अल्लाह ज़ाय नहीं करेंगे बल्कि तरक्की देंगे। तो हम जहाँ तक हो सके अपने आप को तरक्की करने के लिए कोशिशें करते रहे और यहाँ ये जो इल्म सीख रहे हैं ये इल्म दूसरों तक पहुँचाने की भी कोशिश करते रहें। दुनिया का इल्म दुनिया के साथ है, लेकिन इसके साथ साथ दीन का इल्म भी होना ज़रूरी है। ये दीन का इल्म दुनिया और आखिरत में कामयाबी दिलाने वाला है। जो मौका मुझे आज दिया गया है, मैं ये बहुत मसरत के साथ कहता हूँ कि ये जो तहनीत किया गया है अल्लाह ताला इसमें और अजर अता फरमाए और अजर अदीम अता फरमाए। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल व कॉलेज आरमूर बॉयज़ 1 में सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्विज़ प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। सीनियर और जूनियर सतह में कुल 7 टीमों ने हिस्सा लिया। हर टीम में 4 तलबा थे। जूनियर ग्रुप में हज़रत उमर फ़ारूक ग्रुप ने पहला इनाम, हज़रत अबूबकर ग्रुप ने दूसरा इनाम हासिल किया। सीनियर्स कैटेगरी में हज़रत अबूबकर ग्रुप ने पहला और हज़रत उस्मान ग्रुप ने दूसरा इनाम हासिल किया। इस प्रोग्राम में प्रिंसिपल सैयद हैदर, स्कूल कोऑर्डिनेटर नरसैया, असातिज़ा के अलावा लेक्चरर्स और तुलबा ने शिरकत की। तमाम तुलबा ने संजीदगी से प्रोग्राम को समाप्त करते हुए कामयाब बनाया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो इनामात तक़सीम किए गए अल्हम्दुलिल्लाह, कल बरोज़ जुमा तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल आरमूर बॉयज़ 1 के अंदर एक सीरत क्विज़ कंपटीशन मुनक़िद किया गया था। सीरत क्विज़ मुकाबले के अंदर 5th क्लास टू इंटरमीडिएट तक सीनियर और जूनियर के ग्रुप्स बनाए थे। इस तरीके से 7 टीमों ने हिस्सा लिया। इसके अंदर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइजेस बच्चों को दिए गए। ये जो आपके सामने जो बच्चे नज़र आ रहे हैं ये अपने हाथों में प्राइज़ लिए हुए। जज़ाकल्लाहु खैर। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। भारत की साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की आज 105वीं यौम पैदाइश। तेलंगाना कांग्रेस के सदर दफ्तर गांधी भवन में मुनक़िद की गई तकरीब। कायदीन ने इंदिरा गांधी की तस्वीर पर पेश किया गुलाए अक़ीदत। हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बॉयज हॉस्टल की इमारत का संगे बुनियाद। तेलंगाना के वुज़रा सविता इंदिरा रेड्डी, तलसानी श्रीनिवास यादव ने की शिरकत। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी का मरकजी वजीर किशन रेड्डी की सदारत में इजलास। मुद्रा कर्जों, पीएम सेवा निधि कर्जों, पीएम आवास योजना वगैरह का लिया जायजा। कहा अंदरून 1 हफ्ता बैंकर्स का इजलास किया जाएगा मुनक़िद। एसआईटी ने बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष को किया तलब। एसआईटी की नोटिस पर हाईकोर्ट में बीएल संतोष ने दायर किया पिटीशन। हैदराबाद की हुसैन सागर झील के किनारे इंडियन रेसिंग लीग के लिए ट्रैक तैयार। वजीर केटीआर ने इफ्तिताई एडिशन का आज हफ्ते को झंडी दिखाकर किया आगाज। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ने पार्टी के सीनियर लीडर मर्री शशिधर रेड्डी को किया 6 साल के लिए पार्टी से बरतरफ। बीजेपी कायदीन के साथ वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात पर की गई कार्रवाई। कांग्रेस की तादीबी कमेटी के चेयरमैन चिन्ना रेड्डी ने इस सिलसिले में जारी किए अहकामात। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए
चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।